پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ عابد چودھری آصف، چودھری ارسلان اور شہزاد بندیشہ شاہ صاحب جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ یہ تمام دوست جو ہیں شاہ فیصل کالونی کے خاص طور پہ مختلف برادریوں سے ان کا تعلق ہے، سماجی سیاسی کاروباری شخصیات ہیں۔ ان کا اپنے علاقے میں اور شہر کے مختلف علاقوں میں کافی اثر و رسوخ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں سائی صاحب بہت زیادہ لوگوں کو لانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ جو دوستوں کی تعداد محدود رکھیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کر آپ سے بات کر سکیں، اور پھر کسی وقت ہم ظاہر ہے کہ تمام دوستوں سے مل لیں گے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات بتانے کی آپ ضروری ہے کہ لیاقت سائی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا ہے۔ جو 11 یو سیز کے ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں یو سی 3 ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی، جس میں ہمارا اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے، اور ہماری طرف سے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں لیاقت سائی صاحب، اور پی ایم ایل این کی طرف سے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں عمران گجر صاحب۔ اور یہ پی ایم ایل این کے جو سمبل ہے، شیر کا نشان ہے، اس پہ یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہم دونوں مل کر اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہم کئی یو سیاں جیتیں گے ان 11 میں سے، لیکن یہ جو یو سی ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی یو سی 3، اللہ نے چاہا تو یہ 100% پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیابی اس میں حاصل کرے گی۔ میں گزارش کروں گا وقار بھائی سے تھوڑی سی وہ بات کر لیں، پھر لیاقت سائی صاحب تھوڑی مختصر بات کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے سوال جواب لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا لیاقت سائی صاحب کے بارے میں۔ لیاقت سائی صاحب سے ہمارا ایک برسہ برس کا ایک تعلق ہے۔ یہ ترقی پسند مزدور تحریک سے وابستہ رہے ہیں، اور جتنی بھی مزدور تحریکیں چلی ہیں اس کا یہ حصہ رہے ہیں، اور ہمیشہ جنرل مشرف کے دور میں خاص طور پر انہی نے بھرپور طریقے سے جو ہماری تحریک تھی جمہوریت کی بحالی کی، اس میں بھی حصہ لیا۔ اور یہ جیسے سعید غنی صاحب نے بتایا کہ 6 مرتبہ اسٹیٹ بینک یونین جو سی بی آئی یونین تھی اس کے یہ سمجھے کہ ڈبل ہیٹرک کی انہی نے، اور 6 دفعہ یہ اس کے صدر رہے۔ ان کا بڑا سماجی اور سیاسی کام بھی ہے، مزدوروں میں بھی ایک بہت بڑی آواز ہیں یہ۔ تو ہماری بہت عرصے سے ان سے بات چیت بھی چل رہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی میں، کیونکہ یہ سرکاری ملازم تھے اس لیے کسی سیاسی جماعت کا حصہ یا عہدہ نہیں لے سکتے تھے، اسے ریٹائرمنٹ کے بعد آج یہ باقاعدہ طور پہ ہمارا حصہ ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یو سی 3 شاہ فیصل ٹاؤن سے ان کو جو ہے چیئرمین کے سیٹ پر ان کو نامزد کیا ہے، جہاں ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہے، اور ہم یہ جوائنٹ الیکشن وہاں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو سیٹ جس پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ بھی سیٹ اس لیے خالی ہوئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار لیاقت علی ارائیں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہمارا وہاں ملتوی ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو دوست آئے ہیں ان سب کو لیاقت سائی صاحب کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی شمولیت سے اور ان کے دوستوں کی شمولیت سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی۔ اس کا پیغام اور بلال بھٹو زرداری صاحب پہ اور آصف زرداری صاحب پہ جو انہی نے آج اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ شامل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شاہ فیصل ٹاؤن میں بالخصوص اور اوورال پورے ڈسٹرکٹ کورنگی میں اور کراچی شہر میں بھی ان کی وجہ سے پارٹی مضبوط ہوگی، ان کے دوستوں کی وجہ سے مضبوط ہوگی۔ تمام دوست جو ہیں وہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، مزدور تحریک کے ساتھی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جو ہے وہ کراچی شہر میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ بلدیاتی الیکشن میں سامنے آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ نشست بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جب 18 اپریل کو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرے گی۔ تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے جتنے بھی دوست آئیں ان سب کی محنت سے، تعاون سے آئندہ جو میئر ہوگا انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ میں ایک لیاقت سائی صاحب بات کر لیں، پھر میں گزارش کروں گا لیاقت سائی صاحب سے کہ مختصراً وہ آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو بلال بھٹو زرداری صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، حدیث ریال ڈارپور صاحبہ کا، میاں رضا ربانی صاحب کا، سعید غنی بھائی کا، وقار بھائی کا، باقی جتنے میرے پیپل پارٹی کے دوست ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں ہمیں دعوت دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا برسہ برس کا ایک جدوجہد کا ایک ساتھ ہے، چاہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہو،
चाहे वो अदलिया की रेस्टोरेशन हो, हम तमाम तबकात के लिए हमेशा ज्वाइंटली जदोजहद करते रहे हैं। अब हम चूँकि प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि इस कराची में बहुत अशद ज़रूरत है कि तमाम वो तरक्की पसंद लोग और वो तबकात जो हैं कराची के एक प्लेटफार्म पे आके पीपल पार्टी के साथ खड़े हों, ताकि कराची को जो खंडरात बना दिया गया है, जो कराची के मसाइल का एक गड़ा बना दिया गया है, उससे हम निकालें। आपको याद है कि गुज़श्ता हफ्ते बिलावल साहब ने लांडी के प्रोग्राम में कहा था कि कराची में कभी मेयर पीपल पार्टी का नहीं बना और हमें तनकीद की जाती है। हम समझते हैं कि कराची की आवाम जो है, तमाम ज़बानें बोलने वाले जो हैं, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ दें। मैं यूसी चेयरमैन का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि वो मेरे उस जदोजहद के मुताबिक नहीं था, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो ये समझता है कि अगर आप ग्रास रूट पे जहाँ लोगों के मसाइल हों, हमारे यहाँ 15 सालों से यूसी में जमात इस्लामी के लोग मुंतखब होते रहे हैं, कभी किसी बरादरी की छतरी लेके, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की छतरी लेके, उन्होंने पूरा इलाका खंडरात बना दिया जो है। तो हमें इस बात के ऊपर इलाके की बरादरियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे चेयरमैन के लिए नामजद किया है। और हम चाहेंगे कि कराची की यूसी शाह फैसल 3 जो है वो रोड मॉडल की आवाज़ कराची में बने। वो जो 11 यूसी का इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ की आवाम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दें, ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का मेयर बने। और फिर अगर 4 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी डेवलप ना करे तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि आपने क्या किया है। तो मैं इसके साथ ही जो है, मेरी जो टीम, आज मेरे जो दोस्त आए हैं, कोई मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं, कोई बरादरियों से तल्लुक़ रखते हैं, कोई सोशल वर्कर हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। ये अपनी जगह पे बहुत, इनके पीछे एक बड़ा अच्छा खासा एक वोट है जो अपना तल्लुक़ रखते हैं। आज इन्होंने जो है ग्रीन टाउन की आबादी, आपको पता है कि बड़ी एक यूनिक किस्म की आबादी है, और उससे इन लोगों का आना जो है, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए भी एक बड़ा गुड साइन है। ख़ास तौर पे महबूब का भी शुक्रिया अदा, महबूब की जदोजहद आपके सामने है। आमराना दौर हो, पॉलिटिकल पार्टियों का दौर हो, लेकिन पीसी वर्कर की जदोजहद ने हमेशा मेहनत कशों का अलम जो है वो बुलंद रखा, उसका क्रेडिट जो है वो गुलाम महबूब को जाता है। तो हम समझते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की ट्रेड यूनियन के तबकात को, सिंध के तमाम मेहनत कशों को, उन हारियों को, किसानों को और कराची के तमाम मुतवस्सित तबके के लिए हमारा पैगाम है कि आएँ मिल के हम जदोजहद करते हैं। हमने हमेशा जदोजहद जो है आइन की बालादस्ती के लिए की है, रूल ऑफ लॉ के लिए की है, आज़ादी हज़ारे राय के लिए है, और बुनियादी हकूक़ की रेस्टोरेशन के लिए की है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मंशूर इससे ज़्यादा किसी और पार्टी का है नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी और हमारा ज़हनी तौर पे चूँकि हम आंगी है, इसलिए हम समझते हैं कि पीपल पार्टी द बेस्ट फॉर पीपल जो है उसके राइट को रेस्टोरेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, एक एक करके एक करके क्या कहेंगे ये आजकल जो खासतौर पे आप सेनेटर भी रहे इस्लामाबाद की सियासत पे गहरी नज़र आपकी रहती है, जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्या कहेंगे, मुल्क किस तरफ जा रहा है और आप किसके साथ खड़े? देखें, एक तो ये बड़ी बदकिस्मती रही है हमारे मुल्क की कि जहाँ बहुत सारे इदारे अपने दायरे से निकलकर दूसरे इदारों के दायरों में मदाखलत करते हैं, उसमें अदालत भी किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ इफ्तिखार चौधरी, गुलजार अहमद, साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जब गुजरे, और भी कई हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, और उन्होंने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, और सिर्फ़ सियासी जमातें नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, बल्कि अदालत में बैठे हुए मौजूद जजेस जो हैं वो भी अपने ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, और ना सिर्फ ख़दशात का इजहार कर रहे हैं बल्कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उन इख्तलाफात को खुलकर सामने ला रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी साइन नहीं है। हम ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िद से हटना चाहिए। जब तमाम तबकात ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक बहुत सेंसिटिव आइनी इशू अगर अदालत के सामने है तो उसको किसी मुतनाज़ा मखसूस बेंच के सामने ना लगाया जाए,
اور تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں جو اس وقت کرائسس ہیں, جو آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش عمران خان کر رہا ہے, یہ تمام ججز اس پر اپنی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک فیصلہ کریں. جو رویے سامنے آ رہے ہیں اور جو کل ایک بات کہی, بڑے افسوسناک بات تھی, میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جج کو جن کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے ان کو اس لیے بٹھایا کہ وہ کسی کو میسیج دینا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ بینچز بناتے ہوئے کسی کی میسیجنگ کریں, بینچز بناتے ہوئے کسی کو کوئی اشارے کریں. ان کا کام ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اگر کسی جج کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو یہ اللہ کرے وہ غلط ہوں, لیکن یہ مناسب بات ہوگی کہ اس کو کسی بینچ میں نہ بٹھایا جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے. مجھے حیرت ہوئی کہ کل ہی چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہیں بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ وہ جب سنتے ہیں ان کے ججز کے خلاف ایسی چیزیں آتی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, ان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت نے بدنیتی پر مبنی ایک ریفرنس بھیجا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو پاکستان کا چیف جسٹس بننے سے وہ روکیں, اور وہ سازش سب کو پتہ ہے. عمران خان نے کہا کہ یہ ریفرنس غلط بھیجا, صدر پاکستان کہتا ہے کہ ریفرنس غلط بھیجا, اس وقت کی کابینہ کے منسٹرز کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس غلط بھیجا. اب اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ وہ ریفرنس غلط تھا, لیکن اس غلط ریفرنس کے وقت میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس سے جو ان کا فیصلہ تھا وہ کچھ اور تھا. شاید اس وقت ان کے جذبات وہ نہیں تھے جو کل ان کے جذبات تھے. جس طرح کل ان کو دکھ ہو رہا تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, قاضی فائز عیسیٰ کے وقت میں لگتا ہے کہ نہ ان کو دکھ ہوا نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ اس قسم طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. دیکھیں اکثر تو ہم نے یہ کہا, اور میں ہم بھی تنقید کرتا ہوں کہ عدالتیں مختلف اوقات میں مختلف فیصلے کرتی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو کسی ایک ایشو پر ایک اور کچھ ملے گا, اسی ایشو پر مختلف وقت میں کچھ اور فیصلہ ملے گا, یہ تو ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک ہی جج صاحب, ان کا فیصلہ ایک ہی سملر کیس میں پہلے کچھ تھا اب کچھ مختلف ہے. مثال کے طور پہ جب یہ جو لائف ٹائم بین لگانے کی بات ہوئی یا ڈسکوالیفائی کرنے کی بات ہوئی کسی سیاستدان کو, اس پر چیف جسٹس بندیال صاحب کا موقف کچھ پہلے اور تھا, لیکن وہی موقف ان کا تبدیل ہو گیا جب فیصل واوڈا کا کیس آیا. تو ایک ہی جج کا موقف بدل جانا ایک عجیب سی بات ہے. اسی طرح چیف جسٹس کا موقف قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کچھ اور تھا, لیکن اسی چیف جسٹس کا موقف جو ہے وہ جب یہ نقوی صاحب آ گئے تو کچھ اور ہو گیا. اس قسم کے تضادات اگر سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے جو قوم کا اعتماد ہوتا ہے جوڈیشری کے اوپر وہ مجروح ہوتا ہے. آپ حالات اور وقت کے مطابق اگر اپنی رائے کو تبدیل کریں, اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں, تو یہ کسی بھی صورت میں نہ سپریم کورٹ کے لیے اچھا ہے اور نہ ملک کے لیے اور نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بلا جھجک اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے, تمام وکلا تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے, تمام فریقوں کا جو اس مقدمے میں فریق ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں اور پھر آپ یہ کیس سنیں. یہ عجیب بات ہے کہ 9 ججز سے یہ جو بینچ تھا وہ شروع ہوا, سکڑتا 3 ججز پہ آ گیا ہے, اور ان 3 ججز میں بھی ایک جج وہ ہے جس نے خود اپنے آپ کو اس بینچ سے پہلے الگ کیا ہوا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا, مجھے نہیں سننا چاہیے, اور آج اس جج کو آپ بٹھا کے یہ کیس سن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. اس سے عدلیہ مزید متنازع ہوگی, عدالتی فیصلہ جو بھی آئے گا وہ مزید متنازع ہوگا, اور جو اس کی توقیر ہے لوگوں کی نظر میں اس کو نقصان پہنچے گا. جنوری میں الیکشن ہوئے کراچی میں, لیکن اپریل چل رہا ہے, کراچی کا میئر ابھی تک نہیں آ سکا. ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ الیکشن کمیشن جو ابھی تک 10 سے زیادہ یونین کمیٹیوں کے نتائج نہیں دے سکی ہے, وہی کہہ رہا ہے یونین کمیٹی ابھی وہ کرانے جا رہی ہے الیکشن, اس پہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک آپ کا اچھا سوال ہے, اور میں نے بھی یہ پریس کانفرنس پچھلے دنوں بھی کی تھی, اور میں دوبارہ اس سوال کو دہراتا ہوں کہ مجھے الیکشن کمیشن کو ایک سبب بتا دے, ایک وجہ بتا دے کہ جی یہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ 11 یو سیز کا الیکشن ہم نے جنوری میں نہیں مارچ میں اس کو شروع کیا ہے.
देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इन 11 यूसीज़ का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज़ का शेड्यूल आ सकता था और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज़ पर इलेक्शन हो सकता था। कोई एक वजह बता दें कि ये जनवरी में शेड्यूल क्यों नहीं आया और ये 2 महीने के बाद उन्होंने शेड्यूल क्यों जारी किया है। ये जो ताख़ीर हुई है, उस ताख़ीर का सबब क्या है और उसकी वजह क्या है, कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। दूसरी बात कि ये रिवायत बहुत गलत है कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन खाली रह जाने वाली सीटों की वजह से अगर आप मेयर का इलेक्शन रोकेंगे, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली का इलेक्शन रोकेंगे, तो इस मुल्क में आगे चलकर आइनी बहरान पैदा होने के खदशात हैं। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें कोई 4-5 खाली रह गई और आपने इलेक्शन करा दिए और जो जमातें जीत कर आती हैं उनमें जो फ़र्क है सीटों का, वो 1 या 2 सीटों का अगर फ़र्क हुआ तो वो जमात मुतालबा करेगी कि पहले ये जो रह जाने वाली सीटें थी उस पर इलेक्शन कराओ, उसके बाद आप जो है वो चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करो। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कई महीनों तक लटका रहेगा, वो नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ये दानिश है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है। जो 10 सीटों की बात करें, मेरा ख्याल है 10 सीटें नहीं रुकी, अब कम है, लेकिन वो उनको कम जो सीटें रह गई कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक मैक्सिमम 60 दिन होते हैं किसी भी केस को अपने पास रोकने के। गलत तरीके से रोके उन्होंने, लेकिन बहरहाल 60 दिन मैक्सिमम होते हैं और वो 60 दिन का जो अरसा है वो 15 मार्च को ख़त्म हो गया है और उसके बाद उन्होंने खैर बाकी फ़ैसले कर दिए हैं। कोई 2-4 शायद यूसीज़ रहती हैं, उनका भी फ़ैसला करें, उसको नोटिफाई करें, इसलिए कि ये जो कुछ अब डिले हो रहा है ये गैर कानूनी डिले हो रहा है और उसकी वजह से तशवीश पैदा हो रही है उस इलाके में जो लोग मुंतखब होकर आएँ उनके दरमियान और उनके वोटर्स के दरमियान, और ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एक सेकंड। देखिए, पहली बात यह है कि जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनकी तादाद तो कोई 22-23 है, लेकिन ये लोग सिर्फ ये नहीं है जो शामिल हुए हैं, इनके साथ शमूलियत करने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हम यहाँ वो मजमा लग जाता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, हमने कोशिश की कि लोगों को कम बुलाएं। तो जो उनके लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ बरादरियों के, हमने सिर्फ उनको यहाँ बुलाया है, तादाद इससे कई ज़्यादा है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा अच्छा है कि जब ये 15 जनवरी को इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने कुछ यूसीज़ के नताइज पर एतराज़ उठाया और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भेजी कि जनाब इन यूसीज़ में जो कंसोलिडेशन है उसको रोका जाए और उससे पहले इसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। और वो दरख्वास्त भी हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं की, जमात इस्लामी के किसी एक अहदेदार ने की, जो खैर गलत थी कानून के मुताबिक, लेकिन बहरहाल की। और हमने पहली पेशी पर हमारे वकील ने ये कहा कि जो दरख्वास्त जमात इस्लामी ने की है, जो इनकी प्रेयर है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी रिकाउंटिंग करा दें, वो प्रेयर आप अलाउ कर दीजिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहली पेशी पर भी हमारे वकील ने ये कंसीड किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। दूसरी पेशी पर दोबारा ये कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ आप पेशियाँ देते जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं वो करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने फिर वो नहीं माना, लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ किया और करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो 6 यूसीज़ हैं जिनकी कंसोलिडेशन भी नहीं हुई रिज़ल्ट की, उसको उन्होंने रोक दिया था कि उसकी रिकाउंटिंग करा के इसका ऐलान कर दिया जाए। जो जमात इस्लामी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ पर वो ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इनको कह रहा था कि जनाब मेरे पास आप क्यों आए, ये तो कराची का केस है, आप जाएं कराची में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। तो वहाँ इन्होंने बहुत रोना धोना डाला कि जनाब वो रिकाउंटिंग हो जाएगी तो इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेहरबानी करें उसको रोक दें। तो उन्होंने रोका, लेकिन जिस दिन उन्होंने रोका शाम को ऑर्डर इशू हुआ
उस दिन उस ऑर्डर के इशू होने से पहले उन 6 में से 5 यूसीज की रिकाउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ एक रह गई है। क्योंकि उसकी रिकाउंटिंग अगले दिन रखी हुई थी तो वो नहीं हुई, अदालत के फैसले की रोशनी में वो रोक दी गई। लेकिन ग़ालिबन 4 या 5 तारीख है, मुझे यकीन है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी भी रिकाउंटिंग हो जाएगी। 5 यूसीज जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, पीपल्स पार्टी पहले नतीजे के मुताबिक पहले भी हम जीते थे, लेकिन नतीजे में हम जीत गए हैं, तो वो फैसला बिल्कुल क्लियर है, वो हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी जो कह रही थी रिकाउंटिंग कराओ, अब जाके कह रहे रिकाउंटिंग रुकवाओ। इसके बाद हाँ देखें, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, बेगुनाह गरीब लोगों की जानें इसमें गईं। लेकिन जो दूसरा आपने हिस्सा जोड़ा है इसका कि ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत को ज़िम्मेदार होना चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन जो ये वाक़या हुआ उसमें कोई प्राइवेट आदमी, कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने कोई ज़कात देनी थी अपनी, और उस ज़कात को देने का जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब था। उन्होंने कैश पैसे तकसीम करने का ऐलान किया और वहाँ पर लोगों को बुलाया। वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह में कई सौ लोग जो है वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे थे, 600-700 लोग वहाँ वो गए और उन्होंने पैसे तकसीम करे। वहाँ पर उस पैसे तकसीम करने के दौरान वहाँ भगदड़ मची और उस भगदड़ के नतीजे में ये कोई 25 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें से कोई 12 जो है वो बेचारे जहाँ बहक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ना उन्होंने इस जो इवेंट ये कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे ज़कात की, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना किसी और इदारे को बताया कि जनाब हम कोई 500-600-700 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और हमारा ये नेकी का एक काम करने का इरादा है, लिहाजा यहाँ पर आके कोई इंतज़ामात में हमारी मदद करें। किसी तरह का कोई उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी। तो ये कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने ये किया था, और उस पर मुकदमा भी हुआ है, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और उस पर ज़ाहिर है उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैंने रात भी ये इल्तिजा की, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि जो मुखय्यर हजरात गरीबों की इमदाद करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज़्ज़त का तमाशा बनाएं, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें। कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का, जो बैठकर तय किया जा सकता है, ताकि ये जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए और पर्दे में रहकर पहुंच जाए, ताकि उनकी जानें भी बचें, उनकी इज़्ज़त भी बचे। जी वो जब्बार जी एक जब्बार एक सवाल तो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए हैं, उसके बाद इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, नोटिफिकेशन जो साइड पर है, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन, इस सवाल के जवाब में इसका अगला होगा। देखें, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारे जो केसेस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारी 97 सीट्स बनती हैं, 97, और इस्लामी की ग़ालिबन 83 या 84 हैं, और पीटीआई की कोई 42 हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता 5 महीने से शहर में आने का इंतहाई शदीद बहरान है। 2 महीने आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया, इलाकों में स्टॉल लगाए, ट्रकों के जरिए लगे, लेकिन 3 महीने से इलाके में लोग आटा करके आम आदमी भी बिल्कुल, बल्कि मिडल क्लास का तबका भी आटे के लिए मर रहा है। तो वो 15 अरब रुपए जो आपने सब्सिडी के लिए रखे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, या आटे के लिए रखे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? देखें, एक तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि अच्छा काम कर रही है पंजाब हुकूमत भी, कि चले उन्होंने मुफ्त आटा देने की बात की, केपीके की गवर्नमेंट भी अच्छी नीयत है, इंटेंशंस तो अच्छे हैं कि चूँकि महंगाई है तो गरीबों की इमदाद की जा सके।
लेकिन वहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जब ये हुकूमत सिंध फ़ैसला कर रही थी कि हमें भी इस महंगाई के दौर में आटे पर कुछ सब्सिडी देनी है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि इस तरह मुफ्त आटा तकसीम करें जिसमें इस किस्म के वाक़यात होने का भी अंदेशा था, और दूसरा इम्कान ये भी था कि शायद जो मुस्तहक लोग हैं उन तक ये पैसा सारा नहीं पहुँचेगा। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि बजाय आटा तकसीम करने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 32 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो उनका स्कोर है 32 का, वो लोग इसमें आते हैं। हमने उनकी तादाद में इजाफ़ा किया और वो 32 लाख से बढ़ाकर 78 लाख कर दिए, और जो 32 का स्कोर था उसको बढ़ा के 60 पे लेके आ गए। तो 60 पे जो स्कोर आया उसमें ये जो 32 से 78 लाख लोग हो गए। हमने बजाय इसके कि पैसे उनको इस तरह कैश दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उनका तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है, हमने उसको इस्तेमाल किया और 65 रुपये फ़ी किलो आटे की जो सब्सिडी बनती थी 30 किलो की, वो हमने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, जो जाना शुरू हो गए। अब ये पैसा तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पंजाब में KPK में हो रहा है, जो भगदड़ मचली वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार अडॉप्ट किया और ये पैसा थ्रू बैंक चैनल उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कराची के गोश्त को रजिस्टर करने के लिए, इसका एक इजलास हो रहा है। आपकी पार्टी के MLA और हुकूमत के लोग और सरकारी अफसरान हैं। इस कमेटी के एतराज़ जो है SPU की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से और गवर्नर सिंध ने कहा है कि SPU को जमात इस्लामी के पास आएंगे, उसके बाद उन्होंने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध। तो SPU, जमात इस्लामी और गवर्नर सिंध सबको इस वोटों के रेगुलराइजेशन पर एतराज़ है, सब नाराज़ है। पार्टी का क्या मौक़िफ़? देखें, मैं कुछ वाक़यात आपको याद कराऊँ। मुख्तलिफ़ अयाम में, मुख्तलिफ़ सालों में, मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसले भी होते हैं या हुकूमत के खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं। कई आबादियों को जो बकौल मुख्तलिफ़ लोगों के गैर कानूनी तौर पर आबाद हो गए हैं, उनको जाकर उठाने के ऑपरेशंस होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस होते रहते हैं। जहाँ जहाँ ऑपरेशन होता है जमात इस्लामी भी वहाँ पहुँचती है, MQM भी वहाँ पहुँचती है, बाकी सियासी जमातें भी वहाँ पहुँचती हैं और ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, इनको बेघर न किया जाए और इनको रेगुलराइज़ किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये स्टांस बड़ा क्लियर रहा है कि हम किसी भी तौर पर लोगों को बेघर नहीं करना चाहते हैं, हम उनको मालकाना हुकूक देना चाहते हैं। अब मालकाना हुकूक देने का एक तरीका तो ये है ना कि मैं सुबह उठूँ और जहाँ देखूँ कि जो बैठा है उसको जाकर उसकी ज़मीन के कागजात इशू कर दूँ कि जी आप मालिक बन गए, जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप मुनासिब तरीके से जो लोग जहाँ आबाद हुए हैं उनकी तहकीक करें, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, उस बात को यकीनी बनाएं कि ये किसी प्राइवेट लैंड पर नहीं बैठे हैं, ये जो बैठे हैं ये ज़मीन इस काबिल है कि उसको रेगुलराइज़ किया जा सकता है, उनको मालकाना हुकूक दिए जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस अडॉप्ट करें और कानूनी तरीके से उनको मालकाना हुकूक दे दें। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया है। अगर इस पर किसी को भी एतराज़ है, कोई फ़र्द हो, कोई सियासी जमात हो या कोई सरकारी ओहदे पर फाइज ज़िम्मेदार आदमी हो, वो उससे रुजू कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जनाब ये ज़मीन जो आप रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं या जिनको देने जा रहे हैं, ये ज़मीन जो है फ़लाँ आदमी की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ना दें। वो नहीं होगा काम। लेकिन एक अच्छे काम को जिसके नतीजे में लाखों लोग जो बेचारे मतलब बड़ी परेशानी के आलम में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक देने का फ़ैसला किया गया है, तो मुझे नहीं समझ आती बात कि उस पर एतराज़ क्या है। हाँ, अगर हम कोई गलत फ़ैसला कर लें तो बिल्कुल हक़ है कि एतराज़ करें, अदालत में भी जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस कमेटी का कोई फ़ैसला आने से पहले, उन आबादियों की निशानदेही होने से पहले, उनको मालिकाना हुकूक देने से पहले एतराज़ात करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। ये कोई तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई करना चाहता है भले करे, लेकिन हम कानूनी तरीके से उन लोगों को मालिकाना हुकूक देंगे। इमरान खान ने कहा था मैं नहीं रुलाऊंगा, तो PDM के लोग गिरफ्तार हुए, रोए तो नहीं, लेकिन इनके लोग
जर्नैल भी रोए, कल जस्टिस भी रोए, आवाम की तो चीखें निकली, किसके लिए कहा था इन्होंने कि मैं नहीं रुलाऊंगा? देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना मनूस आदमी है इमरान जिसका नाम है, जो इसके करीब जाता है वो फिर ज़मीन पे नाक रगड़ता है, वो कान पकड़ता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता है। वो नाम आपने खुद ले लिए हैं। वो मीडिया के लोग हों जिन्होंने उसको हीरो बनाया, उन्होंने कान पकड़े कि हमने किसको हीरो बनाया, उन्हीं को जेलों में डाला इसने, उन्हीं को उठवाया उसने, उन्हीं को जूते लगवाए इसने, उन्हीं सबको किराए का टट्टू का इसने। फिर अगर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, इक़्तिदार दिलाया, वो क्या नेपीस बदली, समझे, हर काम उसका किया, फिर उनके साथ जो किया वो भी नाक पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि तौबा की, आइंदा हम पॉलिटिक्स से भागे। एक काम ये चले, अच्छा हो गया कि वो सियासत से निकल गए। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो उसका ख्याल कर रहे थे, जो उसका लाड प्यार उसको दे रहे थे, उनके भी जो हशर उनका वो कर रहा है वो आपके सामने है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, अब भी समझ जाएं, अब भी समझ जाएं, ये इमरान एक नहुसत है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क के इदारों के लिए नहुसत है। जब तक इस आदमी को इस मुल्क की सियासत से आप आउट नहीं करेंगे, इस मुल्क की सियासत दुरुस्त नहीं होगी। इमरान को लाड प्यार देने वाले लोग इदारों से नहीं निकलेंगे, वो इदारे ठीक नहीं होंगे। उसको लाड प्यार देने वाले लोग आपकी मीडिया से नहीं निकलेंगे, वो मीडिया ठीक नहीं होगा। इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनसे मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ, अकेले में इश्क कर लो। इमरान के इश्क में इस मुल्क के इदारों को भीट ना चढ़ाओ। इस मुल्क ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क की मईशत ने नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क के लोगों ने नुकसान उठा लिया है, और इमरान खान गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और कोई शख्स किसी इदारे में बैठा हुआ अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो उन मुल्क दुश्मन एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है जिसको इमरान खान इस मुल्क में लीड कर रहा है। इमरान खान को इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में एक ही शख्स था, और वो हमारा नबी करीम था। जो अल्लाह ताला ने अलकाबात मेरे नबी के लिए रखे हैं, उन अलकाबात पर पूरा उतरने की ताकत इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। एक बदकिरदार चीफ जस्टिस ने वो अलकाबात इसको दे दिए। वो आदमी जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता, मैं क्या बताऊं, कौन सा ऐब है इस दुनिया में जो किसी इंसान में हो सकता है जो इमरान में नहीं है? कौन सी बदआमाली है जो कोई इंसान कर सकता है और इमरान ने नहीं की है? इतना बुरे किरदार का आदमी रियासत मदीना के नाम पर जिस तरह से वो नबी करीम के हवाले गढ़ता है, झूठे हवाले गढ़ता है, मिसालें गढ़ता है, मज़हब का इस्तेमाल करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है, उस आदमी को हीरो बनाकर ये पेश कर रहे हैं और उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उसने रुलाने की कोशिश की थी, वो तो इसलिए रो रहे हैं कि मुल्क रो रहा है, लेकिन जो जो इसके पीछे खड़े थे, जिनके ईमान पर वो ये कह रहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सब के सब रो रहे हैं और आंसुओं से धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। देखें, बड़ो ये खैर किसी की भी जान जाए बड़े अफसोस की बात होती है, किसी भी अंदाज में जाए बड़ी अफसोस की बात होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं तो हमारा ज़ाविया शायद किसी और तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो केसेस सॉर्ट आउट होते हैं तो चीज़ें कुछ और निकलती हैं। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर का कत्ल हुआ था, गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर का, लेकिन उसके भी केस हल हुआ और पता चला कि उसके अवामिल कुछ और थे। इसी तरह एक आलिम दीन का भी कत्ल हुआ कुछ अर्सा पहले, वो केस भी सॉर्ट आउट हुआ, पता चला कि उसके पीछे भी अवामिल कुछ और थे। और ये डॉक्टर साहब का भी जो हुआ है, अब ज़ाहिर है कि उसकी तो जान चली गई डॉक्टर साहब की, उसका तो कोई वापसी का हम नहीं कर सकते बंदोबस्त, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि पुलिस इस कत्ल को भी इसको सॉर्ट आउट करेगी और जो भी इसमें मुलविस हैं उनको ज़रूर लोगों के सामने भी लाएगी, उनको सज़ा भी देगी।
जी 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 देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूं, देखिए गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है उस ख़त में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इस मिनिमम वेज के कानून का नहीं पता। उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि बजट में 50,000 कर दें। बजट में मिनिमम वेज फिक्स नहीं होती। मिनिमम वेज तय करने का एक अलग कानून है और एक अलग बॉडी है, बोर्ड है, पूरा एक मिनिमम वेज बोर्ड है जिसमें मुलाजमीन के नुमाइंदे भी होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके नुमाइंदे भी होते हैं। वो बैठ कर तय करते हैं। उसका एक फार्मूला है जो महंगाई के तनासुब से वो फैसला करते हैं और मिनिमम वेज का तयन होता है। हमने उस पर काम शुरू कर दिया है और वो मिनिमम वो वेज बोर्ड जो है अपनी सिफारिशात फिर हुकूमत को भेजता है। फिर हुकूमत कानून के मुताबिक या तो उसकी मंजूरी देती है या उसको वापस भेजती है रिव्यू के लिए कि नहीं, हम इससे मुतमईन नहीं हैं, इसको बढ़ाएं, कम करें, जो भी हुकूमत का एक नुक्ता नज़र होता है वो करता है। तो हम उस कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इस मिनिमम वेज में इजाफा करेंगे। लेकिन मेरे लिए अभी बैठ के ये कहना कि वो कितनी होगी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ये उस बोर्ड का इख्तियार है, उसको ये फैसला करने दें। लेकिन 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा ज़रूर होगा। अब कितना होगा वो बोर्ड जब सिफारिशात भेजेगा फिर उसके मुताबिक उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत का काम इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी जज से हटकर फुल कोर्ट बनाना चाहिए।